So is this visible? दिख रहा है? Yes, जो घर में बैठे नाश्ता कर रहे हैं उनके लिए थे क्वेश्चन. दिख रहा है ना? yes sir, दिख रहा है. Yes, sir. Okay. So So in the last two classes, we were talking about the mechanism of laser, in which we have the ground state E1, and there is another state that is E2, in which this E2 minus E1 is equal to h nu. The difference between these two energy levels, this is equal to the one photonic energy, and then there is n1 numbers of atoms here. When we give energy to the atoms of this ground state, and that energy is represented by Q nu, then out of N1 atoms, N2 atoms are excited up to higher energy level, and we have just given the name this as the absorption transition. This is absorption transition, and the total number of absorption transition, it is given by three parameters. One is that energy given, second time up to that energy is given, and third one is total number of atoms present at ground state. So this N1 is here, total energy we are giving, that is Q nu, and the total time after which this energy is given, that is delta T. So we have used here one Einstein coefficient, that is B12, one to give the direction of transition, and the significance of this coefficient is this gives the total probability of absorption transition. And here it's a lifetime, this is only 10 to the power minus 8 seconds. And after this, if there is no external reaction performing before this 10 to the minus 8 seconds, then the atom will come back to ground state by emitting that absorbed photon. Because each and every atoms, materials have a tendency to attain a minimum potential energy. So to attain that minimum potential energy, after 10 to the minus 8 seconds, the atoms of excited state come back to ground state by emitting the photon. This is the spontaneous process. So the second type of transition is known as the spontaneous transition, and the total number of spontaneous transition, this is governed by two parameters. Delta T, time up to the system is left free, हमने उसको ऐसे छोड़ दिया. And second, the total number of atoms present over there at higher energy level with another Einstein coefficient A21. A21, where the energy is not given, that A coefficient is used. If there is energy is given in any stage, then B coefficient is given by Einstein. So this is A21, which gives the total probability of spontaneous transition. So we have numbers of photons emitting through this spontaneous transition also. But all these photons are random, moving in their different directions. There is no specific characteristics. कोई ऐसा characteristic property उसमें नहीं है. So all these photons are the useless photons. We cannot use these photons as a laser. So why this is so? Because this process is uncontrolled, spontaneous process. There is no control at all. So in order to control these photons, we give that external energy to the atoms of excited state, but this energy is given before 10 to the minus 8 seconds. If we wait this 10 to the minus 8 seconds, then obviously spontaneous transition will occur. So when stimulated transition starts, and by each stimulated transition, we are getting two parallel photons. And this is stimulated transition, and this total number of stimulated transition, this is governed by three parameters again: the energy given, delta T, time up to the energy is given, as well as N2 with another Einstein coefficient, that is B21. So these are three processes, and this h nu, the parallel photons we have, this actually start chain reaction. So one photon, by stimulating one atom, give two photons. Those two photons further stimulate two more atoms and give four photons, and that 4, 8, 16, and in this binary order we have abundant numbers of photons, and these photons moving in the same direction. These photons are parallel photons. So that's why all these photons enhance. There is a drastic enhancement in the intensity. बहुत ज़्यादा उसकी intensity change हो जाती है, and there is high intense. चेयर देख लेना बेटा उसका, है ना, खराब वाला होगा तो वहाँ से लेफ्ट से चेयर ले आना. So that group of photons moving in the same direction actually converts in form of high intense beam that is.
So this is the mechanism, and we have also derived that relation between these Einstein coefficient B12, A21, B21, and that B12 is equal to B21 in the first relation, and reason we have given. Reason is, what is this? What is the physics behind this? This gives the total probability of absorption transition. This gives the total probability of stimulated transition. Means by equating these two, what we are trying to say, the total number of absorption transition, it is equal to the probability of total number of stimulated transition. And the condition is, when all the physical conditions are identical, then this particular phenomena is possible. Okay, so this B12 is equal to B21. This is one relation. Second, we have derived also the second relation, that is A21 by B21. The ratio this we have derived in the last class, and this is equal to 8 pi h mu cube by c cube. This is the next relation between two Einstein coefficients. इसके बाद फिर हम लोगों ने उसको, this is just a theoretical concept given by Einstein in 1917. इसके बाद हम उसको लेबोरेटरी लेवल पर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे. एक्चुअली क्या है, वन थ्योरी इज गिवन, उस थ्योरी को फिर लेबोरेटरी लेवल पर कन्वर्ट करने के लिए कि जो थ्योरी दिया गया है उस थ्योरी को टेस्ट किया जाता है या उसके अकॉर्डिंगली सिस्टम तैयार किया जाता है. यहाँ पर अभी तक ये बात क्लियर हो गई है कि लेजर हमें, जो कि हाई इंटेंस बीम है, ये हमें तब मिल सकता है जब हम किसी तरह से बाय एनी हाउ नंबर ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन को हम बढ़ा सकें. अगर स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन अगर कोई ज्यादा से ज्यादा होगा, हमें हाई इंटेंस बीम मिलेगा. फिर हमने इस पे वर्क करना शुरू किया था कि हम किस तरह से नंबर्स ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन को बढ़ा सकते हैं. Then we just compare this NST with we have compared this NST with NSP, spontaneous transition के साथ. Then second, we had also compared this stimulated transition with NAB. Actually, we take the help of mathematics. ये mathematical expression हमारे पास है, उसका help हम लें और उसके help से फिर थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करें. So this NHT, this is just B21, that energy term is there, delta T is there, and N2 is there. Upon SP, there is no energy term, and that A21 multiplied by delta T multiplied by N2. So here, this B21 by A21 multiplied by Q, because all these parameters can be cancelled. So one energy term is here, because this is the coefficient. Second, this B21 Q nu delta T multiplied by N2 by this B12 Q nu delta T multiplied by N1. So this is equal to N2 by N1 because we have this B12 is equal to B12. Since these coefficients are identical, equal, so this the ratio of this NHT with AB, this is equal to N2 by N1. Now, we are getting two conditions, and these two conditions are essential, that laser obtaining condition. Laser obtaining conditions. In the first equation, so this NHT, इसकी वैल्यू ज्यादा तब होगी क्योंकि ये तो कोफिशिएंट है जो प्रोबेबिलिटी बताता है. अगर हम किसी तरह से ये Q की वैल्यू को हम ज्यादा से ज्यादा करें, एनर्जी ज्यादा दें, so the first condition is that value of Q, it must be much more. ज्यादा से ज्यादा हम एनर्जी उसको दें. दिस द फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन, NHT और AB के साथ जब हमारे पास आता है N2 upon N1, हम चाहते हैं कि NHT की वैल्यू नंबर्स ऑफ स्टिमुलेटेड ट्रांजिशन ज्यादा हो, तो जरूरी है कि हमारे पास N2 का मान जो है वो N1 से ज्यादा. These are two conditions. अगर ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली अगर फुलफिल होता है, अगर ये साइमल्टेनियसली फुलफिल होता है तो हमें लेजर मिलेगा. अब हमारे पास प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ये है कि हम इन दोनों कंडीशंस को किस तरह से फुलफिल करें. लेबोरेटरी लेवल पर, एकेडमिक लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर हमें लेजर बनाना है तो हमारे लिए अब एक टास्क हो गया है. वन, वी हैव द सिंगल ऑब्जेक्टिव कि एनी हाउ वी हैव टू फुलफिल these two conditions simultaneously because these two are essential condition. Okay, so फर्स्ट में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि एनर्जी ज्यादा देने का ये है ना, तो फर्स्ट में ज्यादा प्रॉब्लम, थोड़ी सी प्रॉब्लम सेकंड में आएगी और उसको भी हम सॉर्ट आउट करेंगे. लेकिन इससे पहले थोड़ा सा इस पर डिटेल पे जाए. कुछ टर्मिनोलॉजी जो लेजर में यूज किया जाता है, क्योंकि अभी तक हम नंबर ऑफ एटम्स, एनर्जी, इस तरह के टर्म्स हम लोग कह रहे हैं. कुछ टर्मिनोलॉजी जो स्पेशली लेजर में यूज किया जाता है और 1 या 2 नंबर पे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर थोड़ा डिस्कस कर लें. अब लेजर की लैंग्वेज में बात करें. एंड अभी तक हम लोग सिंपल फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करते हैं, एनर्जी लेवल्स, एटम्स, लाइक दैट. ओके, सो सम टर्म्स
ये इसके अपन डिस्कस करेंगे फिर। Some laser terms. First is active center. One term that is used is active center. So what is the active center? What is an active center? So this active centers is, यहाँ पर देखो इसे हम इस डायग्राम में मैंने इसलिए नहीं मिटाया, हम इसी से उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। एक्टिव सेंटर्स मैंने हर बार ये कहा कि आउट ऑफ N1 एटम्स N2 एटम्स हायर एनर्जी लेवल पे जाता है बाय एब्जॉर्बिंग दिस प्रोटॉन्स। कहीं पर भी मैंने कहा कि आउट ऑफ N1 से N1 पूरे एटम चला जाता है, ऐसा नहीं कहा मैंने। हर बार मैंने एक ही स्टेटमेंट दिया कि आउट ऑफ N1 एटम्स N2 एटम्स आर एक्साइटेड अप टू हायर एनर्जी लेवल, मींस सारे के सारे एटम्स नहीं जाते हैं। तो जो एटम्स डिफरेंट ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, मींस आउट ऑफ N1 N2 एटम्स, ये जो एटम्स है जो कि डिफरेंट ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको कहा जाता है एक्टिव सेंटर्स। गेट द पॉइंट? एक्टिव सेंटर्स आर दोज एटम्स व्हिच आर टेकिंग पार्ट्स इन डिफरेंट ट्रांजिशंस। ग्राउंड स्टेट से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, हायर एनर्जी लेवल से ग्राउंड स्टेट पे आएगा, either through spontaneous process or stimulated process. So active centers are, write one line for this. So active centers are those atoms which are taking part actively in different transitions. So active centers are those atoms which are taking part in different transitions. एग्जाम्पल दे सकते हैं अपन इसी से, है ना? फॉर एग्जाम्पल Z N2 आउट ऑफ N1, N1 एटम में से N2 एटम्स out of N1 atoms. So these are active centers जो कि different ट्रांजिशन में participate सर N2 एटम की बात क्या है? N2 atoms out of N1 atoms. N1 एटम में से N2 एटम्स। ऐसे सारे डेफिनेशन तो मेरे ख्याल से आपको अपने सेंटेंस में लिखना चाहिए, लेकिन चलिए थोड़ा लिखने की हैबिट अभी नहीं होगी तो मैं लिख देता हूँ, पर बोर्ड में मैंने लिख दिया। So these active centers are those atoms which are taking parts in different transitions. हाँ, so या चाहो तो इसको साथ यहाँ पे इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा लंबा अगर कोई ऐसा लिखना है। So here this E1 is that ground state and that E2 is excited state and N1 atom is here, so that is taking parts. तो ये different इसमें spontaneous से हो रहा है। So N2 out of N1 that is active centers. आंसर बनाने में तुम लोग एक्सपर्ट हो, बट साड जो है वही है। Now second is active medium. Second is active medium. एक्टिव मीडियम। अब जितने एटम्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो तो एक्टिव सेंटर हो गया, जो बचा रह गया एटम ग्राउंड स्टेट पे उस एटम को एक्टिव मीडियम कहते हैं। सो एक्टिव सेंटर्स आर दोज एटम्स व्हिच आर टेकिंग पार्ट्स इन डिफरेंट ट्रांजिशन एंड दैट रिमेनिंग एटम इन द ग्राउंड स्टेट that is known as active medium. So the remaining atoms are atoms not participated in transition. The atoms not participated in transitions remaining retaining at ground state
are known as active medium. So active mediums are those atoms which are not taking part in any type of transition, just remaining in a static form at the ground state. That is known as active medium. Means what it is? This actually these actually work as host for एक्टिव सेंटर. ये एक्टिव सेंटर को संभाल के रखता है. ये एक्टिव सेंटर को संभाल के रखता है. एक्टिव सेंटर के लिए ये होस्ट का काम करता है. तो पहला काम ये है कि वो ये तो ग्राउंड स्टेट में रहेगा. ग्राउंड स्टेट में रहने के साथ साथ वो एक्टिव सेंटर को संभाल के रखेगा, होस्ट का काम करेगा. अगर एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं पर अगर कोई रिलीज हो रहा है, इमिट हो रहा है, उसको वो एब्जॉर्ब करता है. एंड तो दिस first you can note its property. First, these actually work as host for the active center. Second, these atoms absorb extra energy released. अगर बाय द वे किसी लेजिंग सिस्टम पे अगर कोई एक्स्ट्रा एनर्जी अगर रिलीज हो रहा है तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. मतलब ऐसा नहीं कि एक्टिव सेंटर कोई आलतू फालतू नहीं है ना, सॉरी एक्टिव मीडियम, उसका बड़ा रोल है. पहला तो ये कि वो एक्टिव सेंटर को संभाल कर रखता है. होस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेरेंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, तो वो होस्ट को संभाल कर, एक्टिव सेंटर को संभाल कर रखता है. सेकंड, अगर एक्स्ट्रा एनर्जी अगर इधर उधर से अगर रिलीज हुआ तो उसको वो एब्जॉर्ब भी करता है. साथ ही साथ दिस क्रिएट बेस फॉर लेजर. ये लेजर एक्शन के लिए बेस का काम करता है, फाउंडेशन का काम करता है. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिव मीडियम. ये एक्टिव सेंटर को संभाल कर रखेगा. एक्स्ट्रा एनर्जी अगर कुछ रिलीज हुआ तो उसको वो एब्जॉर्ब करेगा. साथ ही साथ वो लेजर के लिए बेस का काम करता है, बेस क्रिएट करता है, फाउंडेशन क्रिएट करता है. दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लेजर. दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो known as heart of laser. इसको लेजर का हार्ट कहते हैं, heart of laser. So active medium is also known as heart of laser. कभी-कभी आता है, discuss the statement that active medium is the heart of laser. Means you have to give the properties of active medium. Active medium को पहले definition देना पड़ेगा. Definition देने के बाद फिर भाई active medium होता क्या है? जो एटम्स ग्राउंड स्टेट पे रह जाता है, डिफरेंट ट्रांजिशन पार्टिसिपेट नहीं करता. उसके बाद तीन मेन प्रॉपर्टी बता देना. पहला, ये होस्ट की तरह काम करता है एक्टिव सेंटर के लिए. सेकंड, ये एक्स्ट्रा एनर्जी अगर रिलीज हो रहा है तो उसको एब्जॉर्ब करता है. थर्ड, ये बेस क्रिएट करता है, लेजर का बेस होता है. तीन इंपॉर्टेंट काम करता है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हार्ट ऑफ लेजर. इसलिए इसको लेजर का हार्ट कहा जाता है. एग्जांपल में n2 minus n1 एटम्स, n1 minus n2 एटम्स. भाई n2 तो डिफरेंट ट्रांजिशन पार्टिसिपेट कर दिया, बचा कितना? दैट इज n1 minus n2. So n1 minus n2 atoms, that remaining atoms, these are active medium. ऐसी कंडीशन से क्वेश्चन बना के लिख ले कैसे? लिख सकता हूँ, प्रॉब्लम है ना, लिखा जा सकता है. भाई दिस एक्टिव मीडियम, या डिस्कस दैट स्टेटमेंट, एक्टिव मीडियम इज द हार्ट ऑफ लेजर. तो ये इज द आंसर ऑफ दैट. नाउ थर्ड वन इज पॉपुलेशन. ऐसा मुझे पॉपुलेशन शुरू करना चाहिए था. सर लेजर की खोज किसने की थी? लेजर का मैकेनिज्म दिया था आइंस्टाइन ने. उसके बाद उसमें डिफरेंट नेम आता है. अगर आपके ब्रिलियंट की बात करेंगे तो जब लेजर का टाइप जब पढ़ेंगे ना तो उस समय उस पर मैं डिस्कस करूंगा डिटेल से. अभी तो हम मैकेनिज्म पे जा रहे हैं. थर्ड वन इज पॉपुलेशन. फर्स्ट टाइम मेजर इज डिस्कवर्ड, MAACR, मेजर इज डिस्कवर्ड बाय द सेम पर्सन एंड देन लेजर बाय सेम मैकेनिज्म. माइक्रोवेव को पहले स्टिमुलेट किया गया, बाद में लाइट को स्टिमुलेट किया. तो पॉपुलेशन, ये टर्म ऐसे मुझे शुरुआत यहां से करना चाहिए था. पॉपुलेशन. सो द पॉपुलेशन इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स available at different energy levels
energy levels are known as population, उसको population कहते हैं। जो नंबर ऑफ एटम्स जो कि किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पर प्रेजेंट रहता है उसको पॉपुलेशन कहते हैं। तो अभी तक अभी n1 n2 ऐसा हम कहेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स n1 n2 लेवल है, पॉपुलेशन एट ग्राउंड स्टेट दैट इज n1। तो फर्स्ट पॉपुलेशन एट E1 स्टेट दैट इज n1, टोटल नंबर ऑफ एटम्स ये पॉपुलेशन है, एंड द पॉपुलेशन एट E2 स्टेट दैट इज n2। तो अब n1 और n2 जहां पे लिखेंगे तो हम आपको उसको पॉपुलेशन, इसलिए मैंने कहा कि हम टर्म यूज करेंगे, है ना। अभी तक हम नंबर ऑफ एटम्स कर रहे थे, तो दैट नंबर ऑफ एटम्स से अवेलेबल इन अ पर्टिकुलर स्टेट, एनर्जी स्टेट, दैट इज नोन एज द पॉपुलेशन। हो गया यहां तक? सबने कर लिया? यस सर। यस सर। बलवंत सिंह हाजिर हो? यस सर। हो गया ना तुम्हारा? यस सर। ओके, प्रिया आर यू देयर? भाग गई लड़की। हाँ। प्रिया इज एब्सेंट, इसका एब्सेंट डाल देना भाई, ये गायब हो गई है। So now third is pumping technique. This is fourth. Pumping technique. सो पंपिंग टेक्निक, यहां पर हमने डिफरेंट लेवल, डिफरेंट एटम्स को हम नाम दे दिया, दीज आर पॉपुलेशन। जो डिफरेंट ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उस हम एटम्स को कह दिया एक्टिव सेंटर्स, और जो डिफरेंट ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसको हमने कह दिया एक्टिव मीडियम, जो कि होस्ट का काम कर रहा है। हाँ। लेकिन जिस मेथड से ये एनर्जी दिया जाता है, दिस वन देखो, तो टेक्निक होगा जिस टेक्निक से हम एनर्जी देते हैं एटम्स को एक लेवल से दूसरे लेवल को ट्रांजिट करने के लिए, तो जिस टेक्निक से, दिस मेथड से एनर्जी दिया जाता है जिससे एटम्स एक लेवल से दूसरे लेवल पर पंप हो सके, ये एक प्रकार से इसको पंपिंग कहा जाता है कि ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी एटम था उसको हमने एनर्जी दिया, एनर्जी देके हायर एनर्जी लेवल पे ले गए, तो ये हम उसको पंप कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज पंपिंग टेक्निक। सो पंपिंग टेक्निक इज एक्चुअली एनर्जी गिविंग टेक्निक। सो द पंपिंग टेक्निक is the energy giving technique, energy giving method, technique to pump and to transit atoms. Active center, you can write now, active center from one energy level to other. So एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में एक्टिव सेंटर को पंप करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है, जो टेक्निक यूज किया जाता है, एनर्जी गिविंग टेक्निक यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज पंपिंग टेक्निक्स। उसको पंपिंग टेक्निक कहते हैं। Okay, clear? So energy giving techniques to pump atoms from one energy level to another energy level is known as active, known as pumping techniques. इसको pumping technique कहते हैं। It depends on it is classified on the basis of
टाइप्स ऑफ लेजर। अलग अलग लेजर के लिए ये पंपिंग टेक्निक जो रहता है वो अलग अलग होता है। सो इट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ लेजर। और एक लेजर सिस्टम के लिए जो पंपिंग टेक्निक यूज किया जाता है वो दूसरे के लिए नहीं किया जा सकता, है ना। तो अलग अलग लेजर के लिए अलग अलग पंपिंग टेक्निक यूज करते हैं, एनर्जी गिविंग टेक्निक यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, सो इफ वी टेक so if we have solid state laser, सॉलिड स्टेट लेजर वन टाइप ऑफ लेजर, जो फर्स्ट लेजर जो बनाया गया था लेबोरेटरी लेवल पे वो सॉलिड स्टेट लेजर ही है। तो सॉलिड स्टेट लेजर एंड द एग्जांपल्स आर रूबी लेजर एंड सेकंड वन इज एनडी याग लेजर। ये दो लेजर सॉलिड स्टेट लेजर के अंतर्गत आता है। इसमें से रूबी लेजर हम लोग हमारे सिलेबस में रखे हुए हैं, उनको हम रूबी लेजर का डिटेल पढ़ाएंगे। एनडी याग पहले था लेकिन हमने इसको हटा दिया, दो सॉलिड स्टेट लेजर के बजाय एक सॉलिड स्टेट लेजर ही रखा जाए। सो सॉलिड स्टेट लेजर, रूबी लेजर। इसमें जो पंपिंग टेक्निक यूज किया जाता है, हियर द पंपिंग टेक्निक यूज्ड इज xenon or radon phase tube. So xenon or radon flash tube ऐसा पंपिंग टेक्निक सॉलिड स्टेट लेजर में यूज किया जाता है। जब कभी मैं सॉलिड स्टेट लेजर पढ़ाऊंगा तुमसे मैं पूछूंगा कि इसमें मुझे कौन सा पंपिंग टेक्निक यूज करनी है, तो उस समय तुम्हें याद होनी चाहिए कि सर हाँ सॉलिड स्टेट लेजर है तो आपको इसमें ये पंपिंग टेक्निक यूज करनी है। सो दिस इज द एनर्जी गिविंग टेक्निक फॉर सॉलिड स्टेट लेजर। सेकंड, गैसियस लेजर। सेकंड टाइप ऑफ लेजर इज गैसियस लेजर। इसमें हीलियम नियॉन लेजर, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर दूसरा लेजर सिस्टम है। इसमें से हीलियम नियॉन लेजर को हमने हमारे सिलेबस में रखा हुआ है, तो हम इसमें हीलियम नियॉन लेजर पढ़ेंगे। जिसमें पंपिंग टेक्निक है, so the pumping technique in this laser system, it is electric arc method. This is electric arc method. So electric arc method is the pumping technique used in gaseous laser. हो गया? So two types of laser, solid state laser में हमने pumping technique यूज किया, xenon और radon फ्लैश ट्यूब, इनर्ट गैसेस है, नोबल गैसेस है वो, है ना। और सेकंड है जो गैसियस लेजर, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर, हीलियम नियॉन, जिसमें इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, दो इलेक्ट्रोड लगा के हाई पोटेंशियल अप्लाई के स्पार्किंग करवा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक आर्क। थर्ड इज सेमीकंडक्टिंग लेजर। सेमीकंडक्टिंग लेजर the semiconducting laser examples are gallium arsenide, gallium phosphorus arsenide। ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ लेजर है। gallium arsenide and gallium phosphorus arsenide and the pumping technique, इसमें जो पंपिंग टेक्निक रहता है, दिस इज डायरेक्ट कन्वर्शन ऑफ electrical energy to laser। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डायरेक्टली लेजर में कन्वर्ट करते हैं। वो बैटरी लगाया, बटन दबाया, लेजर निकलना शुरू। वो जो मार्केट में मिलता है ना, जो सस्ते में तुम लोग बेच देते हो, ये कर देते हो, लेजर की बेइज्जती करते हो, हाँ, तो वो जो बैटरी लगाया, बटन दबाया, लेजर निकलना चालू, that is actually that semiconducting laser। semiconducting laser, बैटरी लगा, बटन दबाया, डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू लेजर। तो जैसा पॉइंटर जो यूज किया जा रहा है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, हाँ, या टारगेटिंग इसके लिए, तो वो सेमीकंडक्टिंग लेजर के अंदर है। सो दीज आर डिफरेंट पंपिंग टेक्निक्स used to give
energy to pump atoms from one energy level to another energy. Okay, so these are the terms. ये जो पंपिंग टेक्निक्स हैं, इसी का इस्तेमाल करके हम लोग पहला कंडीशन को फुलफिल करते हैं. हमारे पास दो कंडीशन है, लेजर ऑब्टेनिंग कंडीशन. मैंने कहा था कि लेजर ऑब्टेनिंग कंडीशन पर डिस्कस करेंगे, इसलिए इसको बीच में मुझे लाना पड़ा. तो ये डिफरेंट पंपिंग टेक्निक्स भी है, और ये डिफरेंट पंपिंग टेक्निक्स की वजह से को ही यूज करके हम पहला कंडीशन है उसको फुलफिल करा सकते हैं. ओके, सो वी हैव laser obtaining conditions. First condition is Q must be greater than, must have very higher values. Energy ज़्यादा से ज़्यादा दी जानी चाहिए. And second condition is N2 must be greater than N1. So this first condition, this condition is fulfilled by using different pumping techniques. So the first condition is okay, no problem. पहला condition हम easily fulfill करा ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास different pumping techniques है depending on different types of lasers. अलग अलग लेजर के लिए अलग अलग पंपिंग टेक्निक हम यूज कर रहे हैं. फॉर सॉलिड स्टेट लेजर वी आर यूजिंग xenon and radon flash tube. Gaseous laser we are using electric arc method, and that semiconducting laser we are just using battery to convert that electrical energy to that laser energy. Okay, so the first condition is fulfilled. What's about the second one? N2 का मान N1 से ज्यादा होनी चाहिए. चलिए थोड़ा इसका फिजिक्स समझने की कोशिश करें कि ये एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है. Why this N2 must be greater than N1? N2 is the population at higher energy level. N1 is population at the ground state. Means condition is higher energy level पर population ground state से ज्यादा होनी चाहिए. Higher energy level पर population ground state से ज्यादा होनी चाहिए. वर्डिंग में थोड़ा और समझने की कोशिश करें. If we have, for example, because these N1 and N2 both are variables, these are not fiction. So if initially we have 100 numbers of atoms at the ground state, and out of 100 atoms, if 51 atoms are excited up to higher energy level, so N1 is now 49. Okay, so 51 is at higher energy level. So 51 is greater than 49. Means आधे से अधिक एटम यदि हायर एनर्जी लेवल पर पहुंच जाता है तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा. गेटिंग द पॉइंट? N2 मस्ट बी ग्रेटर देन N1 का मतलब क्या है कि आधे से अधिक एटम अगर हायर एनर्जी लेवल पर अगर कोई पहुंच जाता है. हेलो, so now situation N2 must be greater than N1. What it means? That is more than half of the total atoms. Half of the total atoms must be transformed to excited state.
मींस हायर एनर्जी लेवल पर आधे से अधिक एटम अगर कोई रहे तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। अब प्रॉब्लम कहां पे है? ठीक है, कर देते हैं, पंपिंग टेक्निक लगाते हैं, आधे से अधिक एटम हम ऊपर ले जाते हैं, लेकिन इतना इजी नहीं है। अगेन लेट अस यूज मैथमेटिक्स कि ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहा है। तो let us see the problem behind this condition. Again, we will use the same distribution function. The second condition is fulfilled when because the areas to the other आपने लिखने वाले कैसे? Okay. But just एक statement है, statement that N2 must be greater than means what? When half of the atom, more than half of the atoms are at excited state, then this condition is fulfilled. आधे से अधिक एटम्स अगर हायर एनर्जी लेवल पे है तो हम मानते हैं कि ये एटम ये कंडीशन फुलफिल हो गया। एग्जांपल अगर लेना है तो फॉर एग्जांपल 100 एटम्स यहाँ पे है तो 51 एटम्स चले गए ऊपर, बच गया 49 मींस आधे से अधिक एटम्स। सो इफ मोर देन हाफ ऑफ द एटम्स आर एट हायर एनर्जी लेवल देन दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड। प्रॉब्लम, लेट्स यूज दैट स्टैटिस्टिकल फंक्शन फ्रॉम बोल्ट्जमैन distribution function or statistics distribution function. What we have, n1 is proportional to exponential of e1 by kt, जो हमने लास्ट क्लास में भी यूज किया था। n1 की जो वैल्यू होता है वो it is proportional to this। n2 this is distribution, this is proportional to e2 by kt। so n1 और n2 का डिस्ट्रीब्यूशन विद एनर्जी एंड टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर को आइडेंटिकल रखा हुआ है, एनर्जी के बेसिस पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। रेशियो निकाल के देखें। सो n2 by n1 it is equal to exponential of minus e2 minus e1 by kt, where k is Boltzmann's constant। Getting the point? हमने n1 लिखी है, n1 is exponential of minus e1 by kt और n2 is exponential of minus e2 by kt। दोनों का रेशियो हम निकाल रहे हैं n2 upon n1। so this n2 upon n1 is exponential of minus e2 minus e1 by kt। अब यहाँ पर ये e2 जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे एनर्जी वैल्यू है and e1 is the energy of the ground state। since e2 is greater than e1, e2 का मान ये e2, this is always greater than e1। what it means, this implies this n2 by n1 is equal to negative exponential। अगर ये e2 का मान e1 से ज्यादा है तो यहां पर सामने नेगेटिव साइन है, इसका मतलब क्या हो रहा है, n2 by n1 is actually the negative exponential। ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है। And mathematics tells us if this is negative exponential, तो मैथमेटिक्स के बेसिस पर अगर कोई नेगेटिव एक्सपोनेंशियल आ रहा है then n2 will be always less than n1 at equilibrium। अगर ये नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है तो नेगेटिव एक्सपोनेंशियल का मैथमेटिक्स का मतलब यही होता है कि भाई n2 का मान हमेशा n1 से कम होगा, जबकि हम उल्टा चाहते हैं बट वी नीड n2 का मान n1 से ज्यादा होनी चाहिए। So in equilibrium condition this n2 is always less than n1 and what we want is n2 must be greater than n1। हम उल्टा चाहते हैं n2 का मान n1 से ज्यादा होनी चाहिए। that's why this is known as population inversion condition। इसको population inversion condition कहते हैं। So what is the population inversion condition? Population inversion condition is the condition where at higher energy level
the population is more than the ground state. ध्यान से सुना कर, अगर कोई तो साथ साथ लिखते जाएगा तो लिख लेगा। So simple mathematics we are performing here. We have taken Boltzmann statistics. This n1 is proportional to exponential of this, n2 is proportional to exponential of minus h by this. We are just taking the ratio of these two, n2 by n1. So this n2 by n1 is this. Now E2 is greater than E1. It is showing here. It's higher energy level. Obviously E2 is greater than E1. So this E2 is greater than E1. And this will be the positive term. अब ये अगर कोई पॉजिटिव टर्म है तो सामने नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन है। अगर नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन मतलब दिस वन इज द नेगेटिव एक्सपोनेंशियल, और अगर नेगेटिव एक्सपोनेंशियल है तो हमेशा ये याद रखिए कि ये जो है दिस विल बी लेस देन 1। ये अगर कोई लेस देन 1 हुआ है ना, व्हाट इट मींस, दिस मींस n2 by n1 it is always less than 1. So n1 by n2 is always less than 1, then n2 is less than n1. जबकि हम उल्टा चाह रहे हैं, n2 का मान हम चाह रहे हैं n1 से ज्यादा। इसलिए इस कंडीशन को कहा जाता है पॉपुलेशन एंडरसन कंडीशन। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन जिसमें ये माना जाता है कि भाई पॉपुलेशन एंडरसन कंडीशन मेंटेन होनी चाहिए। मैथमेटिक्स वाले लोग इसका सॉल्यूशन जो है ना बड़ा इजीली निकाल देते हैं। लेट अस अज्यूम वाला कंडीशन, बोले यार आपको इस कंडीशन को फुलफिल करना है, प्रॉब्लम क्या रही है? मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम नहीं है क्या कि नेगेटिव एक्सपोनेंशियल आ रहा है, इसको पॉजिटिव कर देते हैं ना। बोले कैसे? बोले यार एक बार आप मान लो ना E2 की वैल्यू जो है वो E1 से कम है, पॉजिटिव हो जाएगा। बोले नो, नॉट पॉसिबल, हमने E2 को हायर एनर्जी लेवल बना के रखा हुआ है। सेकंड वाले से ये पॉसिबल नहीं है, आपने E2 को हायर एनर्जी लेवल बना के रखा है तो टेंपरेचर T को नेगेटिव कर दो। अगर टेंपरेचर T को अगर नेगेटिव कर दिए तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। फिर हम लोग कहते हैं कि देखो भाई हम फिजिक्स वाले हैं, वी आर यूजिंग यू एज अ टूल, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड फिजिक्स। टेम्परेचर T दैट इज इन केल्विन, केल्विन नेगेटिव नहीं होता, केल्विन नेगेटिव नहीं होता, इट्स 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल अगर मान भी ले कि दैट 1 केल्विन -1 केल्विन, दैट -1 केल्विन इज इक्वल टू -274.15 डिग्री सेंटीग्रेड। कैन यू इमेजिन? Absolute temperature, that absolute temperature is 273.15 with minus sign in centigrade, that 0 Kelvin. उससे तुम एक और पीछे जा रहे हो, means -274.15 degree centigrade, and we want each and every device as a room temperature. सुपरकंडक्टर जो डिवाइस है वो इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे नहीं आ रहा है, अभी भी लगभग 35 -25 36 तक वो पीछे है। वो -11 -12 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको रूम टेम्परेचर लाना, मतलब अबाउट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 27 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड लाना है, तो 35 से 40 डिग्री अभी भी हम पीछे है। So sometimes it is also known as negative temperature condition. This N2 minus N1 is negative temperature condition because temperature T is negative रख के फुलफिल कराया जा सकता है ऐसा कहके। Okay, so this second condition, this N2 का मान N1 से ज्यादा होनी चाहिए। This is problematic. What is written in the last line? Population. This is known as population inversion condition. अब फिर चलिए थोड़ा प्रॉब्लम के जड़ में जाने की कोशिश करें। हो क्या रहा है एक्चुअली? होता ये है कि ग्राउंड स्टेट में हमारे पास हमारा एटम था, हमने इसको एनर्जी दिया, एनर्जी देने के बाद इसको हायर एनर्जी लेवल पे ले गए, और ये हायर एनर्जी लेवल पर इसका जो लाइफ टाइम है दिस इज ओनली 10⁻⁸ सेकंड। ये प्रॉब्लम की जड़ है। ये डायग्राम में यदि इक्विलिब्रियम कंडीशन का तो नहीं है, स्पॉन्टेनियस है। मैं डायग्राम को ओवरऑल पूरे लेजर के फिजिक्स में यूज करता हूँ, शुरू से मैं यही करता हूँ, और सारा का सारा मैकेनिज्म, सारे जो भी चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो एनी हाउ इससे कोरिलेटेड रहता है ना। तो ये डायग्राम में इक्विलिब्रियम कंडीशन का हो सकता है क्योंकि सर यहाँ पे N1 ज्यादा है क्योंकि N2 कम है उससे। ये इक्विलिब्रियम हम लिखते हैं ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये दिस इज व्हाट, और यहीं से भी हम उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। डायग्राम ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन।
हाँ लिख सकते हैं, जब इसको बनाना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन पे, दिस पॉपुलेशन कंडीशन पे भी डायग्राम को ये करना चाहिए। इवन लेजर से रिलेटेड अगर बाय द वे कोई छोटा सा भी अगर कोई डेफिनेशन है, कुछ भी पूछा जा रहा था, तो डायग्राम को बना के उस चीज को समझा सकते हो, एंड दिस विल गिव प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। एक अच्छा बन जाएगा, सिर्फ उसको सेंटेंस में एक लाइन लिखने के बजाय। ओके, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज दिस 10⁻⁷ सेकंड द लाइफ टाइम। हमने यहां से पंपिंग टेक्निक से पॉपुलेशन को एनर्जी दिया, ये हायर एनर्जी लेवल पे पहुंचने लगा, लेकिन वहां लाइफ टाइम की वैल्यू बहुत कम है। आधे से अधिक एटम पहुंचने से पहले ऊपर वाले एटम नीचे आना शुरू हो जाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से। मतलब मैंने एनर्जी दिया, यहाँ 100 एटम में से मुझे 51 एटम्स यहाँ पहुंचाना था फॉर एग्जांपल। जैसे 27-28 एटम्स ऊपर पहुंचा, वो जो पहले पहुंचा वाला एटम था ना, उसका लाइफ खत्म, वापस नीचे। भाई होना तो चाहिए नहीं, 51 पहुंचने तक कोई एटम ऊपर ही रहे, आराम करे वहां पे। तो मेन प्रॉब्लम इज दिस लाइफ टाइम, दिस इज वेरी स्मॉल लाइफ टाइम, 10⁻⁷ सेकंड। मींस हमारे पास एक सॉल्यूशन और हो सकता है, ये सॉल्यूशन तो काम नहीं आया कि टेम्परेचर को निगेटिव कर दे। हमारे पास ये सॉल्यूशन हो सकता है कि हम किसी तरह से इस लाइफ टाइम की वैल्यू को बढ़ाएं। अगर हम ज्यादा टाइम तक रिटेंशन टाइम अगर उस एटम्स का हायर एनर्जी लेवल पे अगर ज्यादा हुआ, then this population inversion condition can be maintained. Okay, अब इसका लाइफ टाइम बढ़ाने के लिए पीछे अब जो है सोचना पड़ेगा कैसे कैसे किया जा सकता है। Then we use सिंपल 2 मिनट और ले रहा हूं मैं। Then we use Heisenberg's uncertainty relation, how to increase the lifetime of these atoms at higher energy level by using Heisenberg's uncertainty relation. What we have is delta t multiplied by delta t, it is equivalent to h cross by 2, where h cross is equivalent to h upon 2 pi, which is equivalent to 1.05 into 10⁻⁵. So this delta t can be written as equivalent to h cross by 2 multiplied by delta e. अगर मैं लाइफ टाइम बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे डेल्टा ई की वैल्यू को कम करनी पड़ेगी। मींस इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, उस एनर्जी डिफरेंस को, दो एनर्जी लेवल के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, उस एनर्जी डिफरेंस को मुझे कम करना पड़ेगा। मींस ये जो लाइन है ऊपर खींच, डंडा खींच के रखा उसको मुझे नीचे खिसकाना पड़ेगा। बोले तो ऊपर मत रहा, दोनों साइड से पकड़ो, उसको नीचे खींचो। ये तो फिक्स एनर्जी लेवल है, इसलिए भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद एक लाइन पे कह दिया जाता है कि देयर इज नो इमिशन ऑफ लेजर बाय यूजिंग 2 लेवल सिस्टम। E1 और E2 का कंसेप्ट लेकर के आप लेजर नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें पॉपुलेशन इन्वर्सन कंडीशन फुलफिल नहीं होता। सर अगर हम लोग एटम को E2 के बदले E3 में लेके जाएंगे तो सर टाइम तो बढ़ जाएगा ना? वेरी C3 सर E3 है नहीं, मतलब और अगर और ऊपर लेके जाए एनर्जी में तो हमने तो भाई अभी E1 और E2 पर हमने बात की, E3 में अभी लाया नहीं है। हाँ, कि पैसेंस ला रहे हैं। Okay, so by using 2 level system we cannot get laser. Why? Because the population inversion condition can never be maintained. Population inversion condition maintain नहीं होता, और मैंने कहा था कि दोनों कंडीशन essential condition है, दोनों में से एक भी अगर फेल होता है, हाँ, लेजर नहीं मिलता। So by using 2 level system we cannot have laser. Why? Because population inversion condition can never be maintained. Okay, so the next part of the story will be continued in the next episode. This. Okay, thank you. So next class में इस पे डिस्कस करते हैं। सर हाँ जी, N1 तो मुझे नहीं मालूम, तुम लोग अटेंडेंस लेके दे दोगे मुझे। सर N1